not getting sleep? Why? A very early morning, everybody, and I'm vlogging after a very long time. Welcome to the brand new episode of Sugar Bandi. Have you ever seen anybody who is so damn excited about about a weekend getaway? Yes, I'm going for a short trip early morning. पर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है 1:30 बज रहा है एंड आई एम जस्ट शूटिंग दिस वीडियो व्हाई एम आई नॉट गेटिंग स्लीप See you everybody to the destination. Catch me. In a world where we live in, it is full of hustle, chaos, and stress. Each and every individual longs for a break and deserves a break to enhance our productivity in personal as well as professional life. When this era talks about work-life balance, Yana Kingsford rightly said, balance is not something you find, it is something you create. For me, I always look forward to travel and food. Hello everyone and welcome to another vlog of Sugar Bandi where you will be traveling with me for a short weekend to the mesmerizing Uttarakhand, also known as Devbhoomi. अरे पर उत्तराखंड में कहाँ? आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा. एंड हियर्स मी वाइबिंग टू SRK एंड Dua Lipa एट द सेम टाइम विद स्ट्रिक्टली मेरे प्लेलिस्ट को प्ले करते हुए मैं जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हुए. और यूं ही हंसते खेलते वाया देहरादून हमें जाना था. तो पहला स्पॉट जहाँ मेरा पॉज हुआ और जहाँ मुझे ब्रंच के लिए रुकना था, दैट वाज लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यस इट वाज OTM Cook House Garden Cafe. Honestly, people, this was a very random and sudden selection. I was supposed to go to Amma Cafe, and this place is just opposite Amma Cafe. For the people who know, Amma Cafe is a famous cafe which is in Majnu Ka Tila, Delhi. It's very famous, and I'm so glad. I am so glad that I chose this place. ये जगह is a top-notch jagah for everything, be it family events, functions, relatives, group of friends coming over. They have such a cute and nice Pinteresty vibe. The decor is so awesome, very lovely aesthetic chairs, and the furniture is rightly placed. It has such a positive vibes, people. एंड चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ. लेट मी शो यू फ्यू ग्लिम्सेस ऑफ द प्लेस एंड हाउ इट इज़, द इंडोर्स, द आउटडोर्स. इट इज़ सो लश ग्रीन, इतना प्यारा वाइब है. बाहर जैसे आप देख सकते हो, इट इज़ सो ग्रीन. आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस. And it's just not because of the decor, the place, the aura. It is the food also. Top-notch service, amazing food, freshly, hygienically prepared, and I seriously had no complaints. And definitely, I think this place also holds a rating of 4 and above on Zomato. देहरादून में जो रहते हैं, डेफिनेटली उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक दिस मस्ट बी वन ऑफ द गो टू प्लेसेस. एंड क्योंकि मैं दिल्ली से जा रही थी, मेरे लिए नया था, एंड इट वाज सो सैटिस्फाइंग. एंड यू कैन सी द आउटडोर सीटिंग. मैं अराउंड 12:40 पहुंची थी, तो इतने लोग नहीं थे उस टाइम पे, बट आई गेस जैसे जैसे शाम होती है, दिस प्लेस इज़ ऑल बजिंग विद पीपल एंड इट हैज़ सच अ लाइवली ऑरा. बस मैं यहाँ पे पहुँची थी, आई टुक माई सीट, एंड अब ब्रंच का सिलसिला शुरू होता है. So we started with scrambled eggs with cheese, sauteed sausages, butter garlic mushrooms, caramelized banana pancakes, and this amazing cappuccino. इसको तो कैसे भूल सकते हैं. There are very few places where I like cappuccino, and this was one of it. Oreo shake भी किया था मैंने order, and mixed sauce pasta with garlic bread. And oh my god, I was so hungry by this time. I was starving. एंड खाते खाते यहाँ आप देख रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह सबसे पूछ भी रही हूँ, रिव्यू ले रही हूँ, हाँ भाई कैसा है, हाउ इज़ द फूड, एंड एवरीबडी इज़ लाइक अमेजिंग. खाना तो बहुत अच्छा है. सो येस, खाना वॉज टॉप नॉच. वॉज रियली गुड फूड, एंड आई वॉज हंग्री टू.
सो मैं बस खा रही थी, इंजॉय कर रही थी, और मैं बोल भी रही हूँ भाई अब जाके मेरे पेट पे कुछ गया है. सो हियर यू कैन सी आई एम एन्जॉइंग माई ब्रंच. मज़े मज़े से खा रही हूँ मैं. एंड पता नहीं, खाते खाते मुझे बड़ी हैप्पी फीलिंग आती है. खाना अच्छा हो तो डेफिनेटली इट मेक्स माई डे. So you can see perfectly cooked scrambled eggs. They're now overcooked, now undercooked. And this was banana pancakes, the caramelized banana pancakes. People, if you have to choose one dish from this place, it is this. First bite, and it's a bomb. It is so good guys, it is so good, so satisfying. इतना अच्छा पैनकेक था, इतना अच्छा. डेफिनेटली आई हाईली रिकमेंड दिस डिश, दिस पर्टिकुलर डिश. ज़रूर आप देहरादून जाएंगे तो इसको बिल्कुल ट्राई करिएगा. And there are a lot of recommendations like these banana pancakes, sandwiches, cold coffee, pizzas, and some Italian cuisine as well. I think that's the highlight of this cafe. बस हंसते खेलते ट्रैवल करते करते आई रीच्ड माई होटल एंड वेलकम टू लैंडोर. जी हाँ, मैं लैंडोर आई हूँ उत्तराखंड में, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर्स अबव मसूरी. मसूरी तो हम जाते रहते हैं, इट इज़ बिकम सो कमर्शलाइज. मेरा दिल था कि मैं लैंडोर जाऊँ. लैंडोर में जाती सबसे पहला प्लेस जो मैंने एक्सप्लोर किया दैट वॉज लाल टिब्बा. माई फर्स्ट स्पॉट just to see the sunset view. And this is a famous place जहाँ पे बाइनोकुलर्स हैं and आप यहाँ पे सनराइज़ एंड सनसेट को देख सकते हैं. and you can see this was approximately 6 p.m. It was a beautiful sunset and there were so many people, they were so happy, the vibes were so good. and you know, इतने दिन बाद जब आप माउंटेन्स एंड इतना ग्रीनरी और इतना फ्रेश एयर ब्रीथ करते हैं ना, the happiness is just next level. एंड आई वॉज वॉकिंग स्ट्रोलिंग डाउन. वहाँ पे मैंने देखा दे वर सो प्रिटी फ्लावर्स एंड बड़े सुंदर सुंदर फूल थे. मुझे नहीं पता विच फ्लावर्स विद दीज, बट दे वर सो गुड. नाउ कमिंग ऑन टू द फूड, आई हैड सम बन ऑमलेट विद जिंजर लेमन टी. एंड एक्चुअली दिस इज़ लाइक 3 अंडे का ऑमलेट एंड इट लुक लाइक अ फ्रॉक ऑमलेट. ऐसे लग रहा था बन को किसी ने फ्रॉक पहना दिया है. इट वॉज सो फनी. एंड द टेस्ट वॉज एवरेज गाइज. आई डेंट फाइंड इट लाइक रियली आउटस्टैंडिंग. अगर आपको खाना ही है ना, बन ऑमलेट खाना है जो फेमस है, आप 4 दुकान में जाके खा लो. बट हाँ, आई वुड ऑल्सो लेट यू नो कि 4 दुकान अगर आप जाओगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. एज यू कैन सी लाइन से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहीं से पार्किंग शुरू हो जाती है. सो बी वेरी केयरफुल, आइदर गो वेरी लेट इवनिंग और गो अर्ली इन द मॉर्निंग. Post Lal Tibba, I was just walking down and towards the Kent and Ivy Cottage area, and it was approximately 6:50 p.m. and वहाँ पे I stopped at the final spot, which was Doma's Inn. Yes people, this was such a beauty. Ivy Cottage, जैसे आपको पता है, लैंडोर कैंट एरिया में आता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो होम टू द फेमस रस्किन बॉन्ड. येस, द लेजेंड. पर रस्किन बॉन्ड जी से तो मैं नहीं मिल पाई थी, बट डोमाज इन वॉज समथिंग विच कॉट माई अटेंशन. इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल टिबेटन कैफ़े. इसकी ब्यूटी ने बस मुझे रोक ही दिया था. सो कलरफुल, सो एस्थेटिक. एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, मुझे पता था आज रात का डिनर तो यही होने वाला है मेरा. एंड आई फेल्ट सच कोजी वाइब्स इनसाइड. इट्स अ टिबेटन कैफ़े गाइज. इट्स ऑल्सो एन इन. ये गेस्ट हाउस भी है. एंड आई वॉज सो अनफॉर्चुनेट. मुझे इसके बारे में अगर पहले पता होता है, डेफिनेटली मैं अपने रहने के लिए इसी जगह को चूज़ करती, बिकॉज दिस इज़ सो कन्वीनियंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस इन लैंडोर. आप जैसे कि देख सकते हो, दिस हैज़ अ गॉर्जियस एम्बियंस. इट इज़ सो डिफरेंट एंड सो कलरफुल. व्हेन आस्क्ड, ये जो सीलिंग्स पे आप देख रहे हैं, ये हैंड पेंटिंग्स हैं. एंड दीज आर बेसिकली डन बाय द, आई थिंक दे आर कॉल्ड द थंकारा पेंटर्स. एंड दे केम ऑल द वे फ्रॉम नेपाल. एंड 10 दिन में इस कैफ़े की पेंटिंग को कंप्लीट किया गया था. It has a lot of quirky decor pieces. You can see lanterns and you can see dream catchers, some vintage decor and paintings and a lot of different kind of paintings. And जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शुरू में लैंडोर की हिस्ट्री के कुछ पोस्टर्स हैं. And there is a very cute and cozy ambience. You can see a Buddha waterfall at the corner. एंड बस मैं तो बस खोई गई थी यहाँ पे. एंड इधर बैठ के आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं. बाहर हल्की हल्की सी शाम हो गई थी. एंड देयर वाज दिस स्लाइट
यू कैन फील इट इन दी एयर। जब हल्की हल्की ठंड पड़ती है आपको एक कोजी वार्म सा प्लेस मिलता है जो कि बहुत ही क्यूट है, जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो, जहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी होती हैं, विंटेज डेकोर है, मूवीज़ हैं, और देयर आर सम अमेजिंग आर्ट पीसेस दैट यू कैन एक्चुअली विटनेस ओवर हियर। सो आई वॉज़ क्वाइट लॉस्ट एंड मैं तो बस शूट ही किए जा रही थी यहाँ पे कि क्या क्या है। देयर वर पीपल एंजॉइंग एंड यहाँ पे भी कुछ लोग थे जो दिल्ली से आए थे। दिल्ली वालों प्लीज़ प्लीज़ मोमो के साथ मेयोनीज़ मांगना बंद करो। आई मीन कहीं कहीं पे ना सिर्फ रेड चटनी से काम चला लिया करो। एवरीबडी इज़ लाइक भैया मेयोनीज़ दे दो, मेयोनीज़ दे दो। एंड आई जस्ट स्माइल्ड एंड आई वॉकड आउट। एंड मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया अपने लिए एक चिकन टुक्पा एंड सम स्टीम चिकन मोमोज एंड ओ माई गॉड, जैसे आप देख रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है मेरी से थकान उतर रही हो। एंड इट वॉज सो कम्फर्टिंग, सो कम्फर्टिंग। मतलब थक के चूर होके मैं बैठ के आराम से लोगों को देख रही थी, विंडो के बाहर देख रही थी, लोगों को देख रही थी, शांति इंजॉय कर रही थी। इट वॉज़ नॉट मच ऑफ अ नॉइज़ी कैफ़े। यहाँ पे बहुत ही अच्छा था, क्यूट था। एंड बस यहाँ पे मेरा दिमाग चला, मैंने कहा नहीं नहीं यहाँ से मैं पार्सल कर लूँगी, मैं अपने होटल में खाऊँगी अगर मुझे भूख लगेगी लेट नाइट तो। सो आई गॉट सम वेज मिक्स नूडल्स पैक्ड and here also I am praising the place and really it was so quirky, it was so unique. मैंने इतना अच्छा कैफ़े, इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड कैफ़े पहली बार देखा। बस I was so tired, I came back, had hot chocolate in my hotel and this is how I ended my vlog for the first day in Nandor. Do like, subscribe and comment for motivating me and stay tuned for the second part. देख लो एक थका हारा इंसान कैसा लगता है। बाय।